Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 27 और 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ रिवीजन देख करते हैं हम पहले पुराने करंट अफेयर्स की और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही और एक और इम्पॉर्टेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे बेसिकली क्या रहता है? जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन के रेडी हुआ था। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए 26 जनवरी को क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है लागू हुआ था, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिपब्लिक डे। डिफरेंस क्या हो गया? 26 नवंबर को आपका रिपब्लिक डे और आपका 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, और 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे। ठीक है, और 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे भी ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरिमऊ शक्ति। रिसेंटली रिमेंबर, इंडिया और मलेशिया के बीच में भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था हरिमऊ शक्ति, और लोकेशन क्या रहेगी इस एक्सरसाइज की? मलेशिया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति 2022 इंडिया और मलेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी और लोकेशन क्या रहेगी? मलेशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएनपी के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको क्या कर दिया गया है? 7% फॉर द फिस्कल ईयर 23। यहीं पे आपको याद रखना है, मूडीज के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की वो भी 7% है। आरबीआई के द्वारा जो प्रोजेक्ट की गई वो भी 7% है। मूडीज के रिलेटेड याद रखेंगे, जो इन्होंने पहले इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी वो थी 7.7%, लेकिन इसको रिड्यूस करके अब कर दिया गया है 7%। ठीक है, तो याद रखेंगे एसएनपी ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की है 7% फॉर फिस्कल ईयर 23। नेक्स्ट इज इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि है पीएसएल, रॉकेट लॉन्च किया जो कि है PSLV C-54 रॉकेट, और इसकी मदद से 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्षक ये थर्ड शिप है ऑफ सर्वे वेसल जो कि अभी लॉन्च किया गया बाय L&T चेन्नई के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है। इनके द्वारा अभी पहला इंडिया का लॉन्च पैड एंड एक मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। आई रिपीट,
अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इंडिया का पहला लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, कहाँ पर है ये दोनों चीज़? सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। और ये कहाँ पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो क्या क्या दो चीज याद रखेंगे? लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर। किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये क्या करेगा काम? बेसिकली जो आपकी मॉनिटरिंग होती है स्पेसक्राफ्ट की, रॉकेट की, वो सारी यहां से करी जाएगी। नेक्स्ट, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के ऑनर कौन है? वो आपके या सीईओ कौन है? वो है इलॉन मस्क। यही आपके फाउंडर एंड सीईओ हैं न्यूरोलिंक के, टेस्ला के। अब इन्होंने बाय कर लिया है ट्विटर को भी। ठीक है, फिर याद रखेंगे इन्हीं के जो स्पेस एक्स है, इनके रॉकेट का नाम है क्या? फैल्कन 9। 3 फैल्कन 9 को जोड़ दे तो क्या बन जाता है? फैल्कन हैवी। और यहीं पे हम ध्यान दें तो ये आपका ड्रैगन कैप्सूल, ये जो ड्रैगन कार्गो है, यही आपका क्या है? आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूल है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसकी न्यूज़ आई कि इन्होंने अभी यहाँ से, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इनके साथ जाके फुल्ली डॉक किया है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यही आपका रिसर्च से रिलेटेड सप्लाईज ले गया, इक्विपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी इक्विपमेंट्स ये स्पेस में लेके गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा। कनाडा हैज वन द मेडन डेविस कप। डेविस कप क्या है? टेनिस से रिलेटेड, मेंस टेनिस कप से रिलेटेड रहेगा आपका डेविस कप। और यहां पर कनाडा ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के बाय 2-0 इन द फाइनल। एंड ये 110वां एडिशन था आपका जो डेविस कप का हुआ, और यहाँ पे कनाडा ने पहली बार ये डेविस कप जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 74th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आ जाता है हर घर गंगा जल। ये हर घर गंगा जल स्कीम किन के द्वारा लॉन्च की गई थी? बिहार के द्वारा लॉन्च की गई थी। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, हर घर गंगा जल को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रशियन एज वेल एज बेलारूशियन एथलीट्स को पार्ट लेने से मना कर दिया था, बैन कर दिया था इन द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया टू यूक्रेन। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में था ना, ये BBIN नेटवर्क था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। लेकिन अभी क्या है, भूटान ने अपनी बाहर इसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस रह गया है। तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनका मानना है कि अगर कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उस कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो ट्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा बिटवीन दीज कंट्रीज़। इंडिया और सिंगापुर की बात करें तो इन्होंने एक MOU साइन किया ऑन कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। VDEMS डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? VDEM के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट में? 93rd। टॉप किसने किया था? स्वीडन ने टॉप किया था। कैटलिन नोवैक, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की। क्वेश्चन आएगा पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन बनी? कैटलिन नोवैक। नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कश्मीर कारपेट्स कहाँ से फ्लैग ऑफ किए गए? जर्मनी से। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहीं पे आ जाता है मिथिलिया मखना। ये कहाँ को, कौन सी जगह का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया था? ये है बिहार का। फिर इंडिया कनाडा, इनके द्वारा रीलॉन्च किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017-21 एज पर द सिप्री रिपोर्ट। और कनाडा की अभी एक रिपोर्ट हो रही जिसमें इन्होंने जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स होते थे किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए, उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। इसीलिए इन्होंने कि कोई भी वहां पे अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो उनके जो मिनिमम आवर्स होते थे वो हटा दिया, वो कितने भी आवर काम कर सकते हैं। फिर इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 5 क्लब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इनकी रैंक रहेगी 5वीं। अडानी ग्रुप की बात करें, इन्होंने साइन की एक डील फॉर 2 पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में। इंडिया ने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को अप्रूव किया फॉर श्रीलंका टू हेल्प पे फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स, जब वहां पे क्राइसिस चल रही थी इसलिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के। अब आ जाते हैं डेली करंट अफेयर्स के ऊपर, जो हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नई चेतना पहल बदलाव की। आई रिपीट, नई चेतना पहल बदलाव की ये एक स्कीम लॉन्च की गई जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसके खिलाफ इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक,
फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स लॉन्च किए गए थे 13 स्टेट्स में अंडर द नेम नारी चेतना केंद्र्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 160 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स इन 13 स्टेट्स अंडर द नेम नारी चेतना केंद्र्स इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन की, ये एक एनुअल मंथ लॉन्ग कैंपेन है जो कि कंडक्ट किया गया था एज जन आंदोलन इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 25 ऑफ नवंबर टू 23 ऑफ दिसंबर। यहाँ पे जो थीम रहेगी वो है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेशन। ये इंपॉर्टेंट थीम रहेगी जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर पूछा जा सकता है ये किन के द्वारा लॉन्च की गई थी स्कीम, ये गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पर एक चीज और देखेंगे, ये जो जेंडर रिसोर्स सेंटर क्या है, बेसिकली टोटल में अभी तक 1251 जेंडर रिसोर्स सेंटर सेटअप किए गए हैं अक्रॉस इंडिया, जहां पर वीमेन जो भी जेंडर वायलेंस फेस करती हैं उधर जाके वो अपने खिलाफ अपनी हेल्प को सीख कर सकती हैं, लोगों की हेल्प ले सकती हैं फ्रॉम दिस जेंडर रिसोर्स सेंटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक पार्टनरशिप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ, ताकि जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है आयुष मिनिस्ट्री से, आयुष सेक्टर से लेके उसको बढ़ाया जा सके। अब आप पूछेंगे सर आयुष सेक्टर क्या होता है? आयुष सेक्टर होता है आपका आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आपका आयुष हो गया। तो आयुष इन फील्ड से रिलेटेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया आयुष मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ, ताकि एविडेंस बेस्ड रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां पर क्या होगा, अगर एविडेंस बेस्ड रिसर्च होगा ना तो लोगों का थोड़ा इस पे विश्वास बढ़ेगा, लोगों को लगेगा दीज थिंग्स आर इफेक्टिव। वरना आज लोगों को क्या लगता है, दे आर इफेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म। ये इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी हमारी केमिकल जो बाकी ड्रग्स होते हैं वो हमारी इफेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया फॉर्म्स अ पैनल टू रिवैम्प ओनली गवर्नमेंट जॉब गारंटी स्कीम। ये रिपोर्ट ओनली जॉब गारंटी स्कीम कौन सी है, जो महात्मा गांधी की फोटो से भी सिंबलाइज करती है, वो है मनरेगा। मनरेगा क्या कहती है कि हम आपको एक डेली हर साल एक फिक्स अमाउंट का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये आपकी क्या है, मनरेगा स्कीम। तो इस मनरेगा स्कीम से रिलेटेड ही एक पैनल फॉर्म किया जाएगा कि जो ध्यान रखेगा कि जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के द्वारा मनरेगा स्कीम के अंडर वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, जो लोगों को नौकरी जेन्युइनली मिल रही है, और जहां पे उनकी नौकरी लगा रही है वो एक प्रॉपर सेंटर है जहां पे जो काम कराया जा रहा है वो भी एक सही काम कराया जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें, ये 2005 में लॉन्च किया गया था। इट केम इनटू फोर्स इन 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन 2006, ठीक। फिर इसको मनरेगा चेंज कर दिया गया था, ये याद रखेंगे, इन 2009। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अभी तक अगर हम देखें 2022-23 में आउट ऑफ 70,000 करोड़ अप्रूव्ड फॉर द स्कीम, 59,000 करोड़ रुपीस को यूज किया जा चुका है इन द फिस्कल ईयर 23। ऑलराइट, और जो बाकी अमाउंट है उसको भी अभी धीरे धीरे यूज किया जाएगा। तो मनरेगा पैनल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस गवर्नमेंट गारंटी स्कीम के लिए भी एक पैनल सेटअप करने की बात की गई, तो वो है मनरेगा। नेक्स्ट आ जाता है COP19 के बारे में। अब ये COP19 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स, CITES। ये साइट्स क्या है, ये है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। आप इसको बेसिक इसका थीम समझ सकते हैं कि जो COP19 हुआ था ना, वो क्या हुआ था, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, फौना है, फ्लोरा है, उसके कन्वेंशन के लिए, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए। अब फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है? फ्लोरा होता है आपकी जो प्लांट की स्पीशीज होती हैं, फौना होता है आपके एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं, ये होता है, ठीक है। फिर याद रखेंगे COP19 कहां पर हुआ था, ये जो साइट्स के ऊपर, ये हुआ था पनामा सिटीज में। कब से कब तक हुआ था, 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 19th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की टू साइट्स, जो कि है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा, ऑल्सो नोन एज द 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। ये कब से कब तक हुई, 14 से 25 नवंबर के बीच में हुई पनामा कन्वेंशन सेंटर में, पनामा सिटीज में, ठीक है। और ये COP19 से ऑफ साइट्स, ये क्या है, एम्ड एट प्रिवेंटिंग वेरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय प्रोहिबिटिंग द ट्रेड ऑफ दिस स्पीशीज।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 डे विजिट किया कंबोडिया में। और यहाँ पे कंबोडिया में विजिट करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है, ये जो 2 डे विजिट थी ये क्या थी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया है नाइन्थ एशियन डिफेंस मिनिस्टर समिट में, ठीक है, जो कि कंबोडिया में हुई थी। आई रिपीट, किन्होंने इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द 9th एशियन डिफेंस मिनिस्टर समिट, जो कि कंबोडिया में हुई थी, वो थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 22nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि ढाका बांग्लादेश में हुई थी। और ढाका बांग्लादेश में ही एक और चीज का हेडक्वार्टर है, वो है बिम्स टेक। सो कमिंग बैक, IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 22nd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ पे हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई, और इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इंडियन डेलीगेशन कौन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। ये इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखेंगे, ठीक है। 22वीं IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि किसके द्वारा होस्ट की गई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के द्वारा ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। और यहाँ से इंडियन डेलीगेशन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूज ही। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कौशल्या मैत्रित्व योजना, ये मार्क करेंगे। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहां पर, थूथुकुडी में। प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेच्यू, कहां पर, पुणे में। और यहीं पे अगर मैं बात करूं लॉर्ड बुद्धा का सिटिंग स्टैचू कहां पर है, वो है बोध गया में, बिहार में। नेक्स्ट, इंडिया के लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा की बात करें, ये कहाँ है, बोध गया में। अभी बताया, सिटिंग स्टैचू भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया वीमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स टू वीमेन। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने प्रेजेंट किया 1.77 लाख करोड़ रुपीज फॉर द बजट फॉर फिजिकल ईयर 22 और फिजिकल ईयर 23, दैट इज फॉर 22 to 23। और इन्होंने अनाउंस किया सुषमा स्वराज अवार्ड्स को फॉर वीमेंस, ये याद रखेंगे, सुषमा स्वराज अवार्ड्स। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ई अधिगम। ये ई अधिगम क्या है, ये स्कीम थी ताकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के, उनको प्रोवाइड की जा सके टैबलेट्स। फिर यहीं पे आ जाते हैं चारा बिजाई योजना, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हरियाणा की है। यहीं पे IMT खरखौदा में आप याद रखेंगे मारुति सुजुकी का प्लांट बनाया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाएंगे, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने एक MOU साइन किया IIT रुड़की के साथ फॉर BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने अपना फर्स्ट रैंक रिटेन किया इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के लिए। इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया, मानेसर हरियाणा में। कैबिनेट अप्रूव करेगा सेटिंग अप ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, जामनगर गुजरात में। किसकी मदद से बनाया जा रहा है, WHO की मदद से। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अच्छा, गुजरात के बारे में 2-3 चीजें और याद रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स की प्रोडक्शन थी, जो कि पहले मुंबई में होती थी, अब उसको गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। फिर यहीं पे देखेंगे, इन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है, जिसकी मदद से अब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में एक MOU साइन हुआ ताकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रेलवेज। यह फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इंडिया रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ कमीशन किया गया था, आसनसोल डिवीजन में ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें, यह वर्ल्ड का पहला लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया टू रिसीव द BIS सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है SMC ग्लोबल के साथ। आई रिपीट, पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद ब्रोकरिंग पार्टनर SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड टू ओपन 3-in-1 अकाउंट, जो कि होगा आपका सेविंग्स बैंक, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। याद रखेंगे, SMC ग्लोबल के साथ किन्होंने टाई अप किया टू ओपन 3-in-1 अकाउंट, वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये आपका सेविंग बैंक, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं ONDC। ONDC क्या है,
वन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पे हम जानते हैं पेटीएम मॉल वो पहला मॉल बना था या पहली ऐप बनी थी जिन्होंने लॉन्च किया था अपनी एप्लीकेशन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इसके अलावा अगर हम देखें तो अब कौन सा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, जो कि एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है, वो है आपका मीशो। ठीक है, मीशो रहेगा। इसके अलावा देखें तो हम जानते हैं मीशो ये फोर्थ यूनिकॉर्न बन गया जिन्होंने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया। पहला पेटीएम, फिर डंजो, फिर शिप रॉकेट और अब आ जाता है आपका मीशो। ठीक, ये चीजें याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। तो पेटीएम मॉल आया, फिर आपका डंजो आया, फिर शिप रॉकेट और अब मीशो ये फोर्थ यूनिकॉर्न बना है जिन्होंने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की। अब ओएनडीसी क्या है, बेसिकली यहाँ पर कोई भी जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो लोकल सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं इजीली। इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, टोकायेव, इनको स्वॉन किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नए एक्टिंग एनडीडीबी चेयरमैन मनीष शाह। आई रिपीट, एक्टिंग एनडीडीबी क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के एक्टिंग चेयरपर्सन मनीष शाह, इनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। आई रिपीट, चेयरमैन एनडीडीबी के कौन है, मनीष शाह, और उनको क्या बना दिया गया है, अब उनको क्या पोस्ट मिल गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर की। इंपॉर्टेंट, ठीक है। मनीष शाह, द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी, हैज बीन प्रमोटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट। फिर दिस पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनडीडीबी हैज बीन वैकेंट after Dilip Rath was elevated to chairman of NDDB in 2016. The post of full-time chairman of NDDB has been vacant since 2020 December after the retirement of Dilip Rath. Next आ जाते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टू एक्वायर बिस्लेरी फॉर 7,000 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, टाटा कंज्यूमर भी न्यूज आई कि जो बिस्लेरी है ना वो अपने ब्रांड को, अपनी पूरी कंपनी को बेच रहा है टू टाटा। ऑलराइट, और ये न्यूज़ के साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे यहाँ पे भी फॉलो एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा इनकी बेटी जो है उन्होंने अपनी कंपनी को टेक ओवर करने से मना किया था, तो इसीलिए ये 6,000 से लेके 7,000 करोड़ के बीच में टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड इज सेट टू एक्वायर बिस्लेरी की बात करें तो जयंतीलाल चौहान जो कि ओनर है बिस्लेरी के, इन्होंने पार्ले ग्रुप से बिस्लेरी को एक्वायर करा था। ये एक इटालियन ब्रांड है, 1969 में इन्होंने एक्वायर करा था। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये जो टीम है बिस्लेरी की, ये इस एक्वायरिंग के बाद, इस एक्विजिशन के बाद 2 साल तक वर्क करती रहेगी एज अ पार्ट ऑफ डील, और इसको हेड किया जाएगा बाय सीईओ एंजेलो जॉर्ज। बिस्लेरी आप जानते हैं ये फेमस जो वाटर होता है, हमारे पानी की बोतल को सप्लाई करता है, वो ब्रांड है बिस्लेरी। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना। देखो चाइना से रिलेटेड अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो इनके जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन CNS से हैं, इन्होंने टिएंगोंग नाम का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है। और इसी के साथ याद रखेंगे, इन्होंने बोला कि ये जो टिएंगोंग स्पेस स्टेशन है ना, ये आपका 2022 के एंड में या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2023 ये रेडी हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर अभी टिएंगोंग में 3 साइंटिस्ट को, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है जो कि 6 महीने वहाँ पे रहेंगे और रिसर्च करेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इनके द्वारा भी एक और न्यूज़ रिसेंटली रिलीज की गई कि हम मून पर अपना बेस बनाएंगे जो कि पावर किया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी से, और ये 2028 तक रेडी हो जाएगा। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट, चाइना प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट मून बेस जो कि पावर किया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी से, और 2028 तक ये रेडी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ इसरो की अगर मैं बात करूं, इसरो भी प्लान कर रहा है अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, 2030 तक ये भी बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ओडिशा के द्वारा अभी एक ई डिटेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया टू आइडेंटिफाई व्हीकल्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जो व्हीकल्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स होंगी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ई डिटेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस स्टेट के द्वारा? ओडिशा स्टेट के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ याद रखना है द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है, इन्होंने अनाउंस किया था, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओडिशा ने अनाउंस किया था दैट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा हैज डेवलप्ड एन ई डिटेक्शन पोर्टल।
जो डिटेक्ट करेगा व्हीकल्स प्लाइंग ऑन नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवे विदाउट अ वैलिड डॉक्यूमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से यह लागू हो जाएगा। ये पोर्टल का एम रहेगा टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टोल गेट्स ऑन एनएचएस, जो कि होते हैं नेशनल हाईवेज। Toll gates on national highways have been integrated with the portal in the first phase. Later, information will also be gathered from mining and industrial areas. Moving on, नेक्स्ट बात करते हैं केरला की। केरला ई मोबिलिटी ऐप। अब आप देख रहे हैं सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, तो सब कुछ अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। तो केरला ई मोबिलिटी ऐप के ई मैप की बात करें तो ये केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा डेवलप की गई एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका एम क्या रहेगा, ये एक कॉमन ऐप है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपने एरिया में लोकेट करने में लोगों की हेल्प करेगी। दिस ऐप इज नाउ इन टेस्ट मोड एंड इसको सून अवेलेबल किया जाएगा प्ले स्टोर पे, जहां से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाएगा ये KSEB क्या है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। किन्होंने आपका केरला ई मोबिलिटी ऐप या फिर बोल देंगे KE मैप नाम से ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई थी, तो वो रहेगा केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको डेवलप करा गया। Next, India's first medical city, Indriani Medicity, will be set up in Pune, Maharashtra. Odisha topped in full immunization with 90.5% coverage under Mission Indradhanush. काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेलटेल की रैंक रहेगी 124। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई ईवी पोर्टल फॉर परचेजिंग रजिस्टरिंग एंड ई ऑटोज। यहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो 2 रोबोट्स को फायर फाइटिंग टीम में ऐड किया गया था। यहीं पर आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम भी है। यहीं पर आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर खादी। और यहीं पे अगर हम बात करें तो 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। यहीं पर आप बात करें तो लार्जेस्ट ड्रोन मेला हुआ था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे हुआ था, पहला ड्रोन मेला या पहला ड्रोन फेस्टिवल याद रखेंगे ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। फिर बात करें इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, कहां पर लॉन्च किया गया, बेंगलोर में। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर रहेगा, ये गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे बनने जा रहा है, गुरुग्राम हरियाणा में बनने जा रहा है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। गिरिराज सिंह ने लॉन्च की नई चेतना पहल बदलाव की एक कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन है अगेंस्ट GBV। आयुष मिनिस्ट्री एंड DST ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन आयुष सेक्टर। MORD इन्होंने फॉर्म किया एक पैनल टू रिवैम्प मनरेगा स्कीम। 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP19 कहाँ पे हुई थी, पनामा सिटी में 14 से 25 नवंबर के बीच में। देन याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ने 2 दिन विजिट किया था कंबोडिया में एंड टू पार्टिसिपेट इन द एशियंस डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। 22nd IORA इंडिया पार्टिसिपेटेड इन IORA मीटिंग टू सेटअप ई ऑफिस इन ऑफ IORA और ये कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। देन VA टेक वाबैग साइन एक एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू रेज 200 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। फिर VA टेक हम देख ही चुके हैं। सेबी ने रिलीज की यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर OTC ट्रेड्स इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया SMC ग्लोबल के साथ। पेटीएम मीशो इन्होंने ज्वाइन किया, पेटीएम तो पहले ही ज्वाइन कर चुका है, अब मीशो ने ज्वाइन किया और ये 4th यूनिकॉर्न बन गया जिन्होंने ज्वाइन किया ONDC नेटवर्क को। देन कैसम जोमाट के टोकायेव हम जानते हैं कौन है, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कजाकिस्तान के। देन एक्टिंग NDDB चेयरपर्सन मिनीश शाह इनको इनको प्रमोट कर दिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। देन MNG गेट CCI नोड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रस्ट रूट इंटरनेट बॉन्ड्स एंड वारंट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एक्वायर किया बिस्लरी को फॉर 6,000 to 7,000 करोड़ रुपीस के बीच में। चाइना बिल्ड करेगा अपना पहला मून बेस जो कि पावर किया जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी से बाय 2028। फिर JNPA इन्होंने इनॉग्रेट किया कॉन्टिन्यूस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च की जो कि है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट,
कंस्ट्रक्शन डे कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 नवंबर को, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, और उड़ीसा के द्वारा एक ई डिटेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया था टू आइडेंटिफाई व्हीकल विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और KSEB ने डेवलप किया था एक कॉमन ऐप फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच स्टेट हैज नोटिफाइड सेफ्टी गाइडलाइंस टू चेक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2022। थर्ड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। फोर्थ, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 के लिए। और पांचवा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ 15-point विंटर एक्शन प्लान टू कर्ब एयर पॉल्यूशन। तो ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा। ऑल्सो लाइक कीजिए हमारे चैनल को। पसंद आ रहा है सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक देखने को चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.